السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ This financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations. I call it death trap. Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries. Pakistan calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change. باکو میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک $6.8 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ قرضوں کے چنگل نے ان ملکوں کے مسائل کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے اور اہداف کے حصول کے لیے مالیاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نیا لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ قرض کی بجائے دیگر آپشنز بروئے کار لانا ہوں گے۔ گرین انرجی اور ماحول دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کے ساتھ مربوط کثیر الجہتی تعاون بڑھانا ہوگا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے قائم فنڈ کا حجم بڑھایا جائے۔ ترقی یافتہ ملک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب۔ Accelerated glacier melt has led to the formation of more than 3,000 glacial lakes in the northern part of Pakistan. Out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. This is a very grave situation and demands urgent action. And now, گلیشیئرز لائف لائن، بڑھتے درجہ حرارت سے خطرات لاحق، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک، آبی ذخائر سمیت قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مشترکہ کاوشیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں تاجکستان کی میزبانی میں اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنا اجتماعی ذمہ داری۔ آذربائیجان میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام COP29 کانفرنس، ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کا آغاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ میزبان صدر الہام علیوف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے استقبال کیا۔ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ عالمی رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ گرین ہاؤس گیسز اور عالمی درجہ حرارت میں کمی کے لیے اجتماعی اقدامات اہم ایجنڈا۔ ترقی پذیر ملکوں پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کا اہم موضوع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ کی افتتاحی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں دو طرفہ امور اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور ان کے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے مواصلاتی روابط کے فروغ، گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ پر بات چیت۔ محمد شہباز شریف کی قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ، بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس اور نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈیل سے بھی غیر رسمی ملاقات۔
जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, दर्जा हरारत में कमी समेत माहौलियाती इशूज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की डेनमार्क की हम मनसब से भी तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। माहौल को दरपेश चैलेंजेस हकीकत पसंदाना हिकमत अमली के मुतकाजी हैं। दोहरे मेयार तर्क करना होंगे। जाली प्रोपेगेंडे का शिकार होने की बजाय हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। मुतबादिल तवानाई ज़राए के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए ऐलानात के बजाय इक़दामात करने हैं। पायदार तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाना होगा। आलमी हिद्दत में कमी के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क लॉस एंड डैमेज फंड के लिए वादों पर अमल दरामद के साथ अपना हिस्सा भी बढ़ाएं। दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों से ताउन में इजाफा किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। COP29 इज्तिमाई चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका जदोजहद का फोरम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मुख्तलिफ इजलासों में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से अहम आलमी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी कवरेज, आलमी रहनुमाओं की आमद, वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट समिट के इफ्तिताही इजलास समेत तमाम अहम इवेंट्स बाकू से बराह रास्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में 93,000 की सतह बरकरार। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 93,871 तक पहुंच गया। प्रॉफिट टेकिंग के बायस दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 423 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 93,224 पर बंद। सराफा बाजार में सोने की कीमत में कमी, फी तोला 7,000 रुपए सस्ता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कार्रवाई। जनवरी 2023 को पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्द वली उर्फ उमर पुलिस कांस्टेबल निकला। एतराफी बयान में होश रुबा इंकशाफात। कलअदम जमात उल अहरार के लिए सहूलतकारी की 2 खुदकुश जैकेट्स भी बरामद। अफगानिस्तान से धमाका खेज मवाद की तरसील में भी मुलव्वस। कुन्नड़ में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकर्रम खरासानी से भी मिला। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात खान की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। जजेस कमेटी का आईनी बेंच में मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इजलास। 6 रुकनी आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को समाअत करेगा। जजेस कमेटी का इजलास कल फिर होगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद स्मॉग के डेरे। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। बढ़ती फजाई आलूदगी के बायस साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक स्कूल बंद। ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में तालीमी इदारे पहले ही बंद हैं। हुकूमत की आवाम से हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद की अपील। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। दीर बलाह में 62 अफराद शहीद। गजा में हर तरफ तबाही। अस्पताल, स्कूल और महाजिर कैंप से हुनी फौज के मुसलसल निशाने पर। शिमाली गजा में होने वाली झड़प में 4 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में इसराइली जाहरियत में शिद्दत। मशरकी इलाके बलबैक पर मजीद हमले। दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर भी बमबारी। सेहोनी फौज ने शहरियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम देने के बाद हमले शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली का बतौर हथियार इस्तेमाल। नजरबंद और जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों से इंसानियत से सलूक।
کپواڑہ اور بانڈی پورہ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، متعدد نوجوان گرفتار، کالے قوانین کے تحت مقدمات درج۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی نیٹو پر شدید تنقید، انتشار پسند تنظیم قرار دے دیا۔ نیٹو کا کام امریکہ کے اہداف کا حصول ہے، خطے کے ممالک کے درمیان تعمیری تعاون سے نئی تاریخ رقم کریں گے۔ روسی صدر کا ماسکو میں ماہرین سے خطاب۔ روس کے قومی سلامتی کے سیکرٹری سرگئی شوئیگو کا چین کا دورہ، بیجنگ میں وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق۔ استور میں مسافر بس دریا میں جا گری، 17 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ صدر مملکت کا واقعے پر افسوس کا اظہار، امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر چوہائی میں حادثہ، تیز رفتار بس راہگیروں پر چل دوڑی، 35 افراد ہلاک، 43 زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ چینی وزیر اعظم کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ پاکستانی اسپنر نعمان علی کا اعزاز، اکتوبر کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار۔ نعمان علی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 20 وکٹیں حاصل کی تھی۔ خواتین پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز نیوزی لینڈ کی امیلیا کر کے نام۔ اور قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، ٹیم ورک سے ون ڈے سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ 22 سال بعد آسٹریلیا کو اسی کی سرزمین پر شکست دی۔ کپتان محمد رضوان کی گفتگو۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ FGEHA کی جانب سے اسلام آباد کے ڈیولپڈ سیکٹرز G13 اور G14 میں کمرشل پلاٹس کا شاندار نیلام عام، مورخہ 13 اور 14 نومبر 2024 بمقام گندھارا سٹیزن کلب F9 پارک اسلام آباد۔ درست ہر وقت بر وقت۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک $6.8 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ باکو میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صورتحال سے نمٹنے اور اہداف کے حصول کے لیے مالیاتی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نیا لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرض کے بجائے دیگر آپشنز بروئے کار لانا ہوں گے، گرین انرجی اور ماحول دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے قائم فنڈ کے حجم کو بڑھایا جائے۔ رپورٹ کریں گے محمد شاہد۔ باکو میں پاکستان کی میزبانی میں منعقدہ کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کو دگنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ کے 2 بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا بخوبی اندازہ ہے۔ Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced 2 devastating floods and are still recovering from the loss. In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan, alongside many other developing countries, calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement
less than half their current NDCs. Donor countries should fulfill their commitment. वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे बढ़ना होगा और दरकार वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। We should fulfill financial obligations and commitments which have been made over the period of time by global community. Strengthen spirit of multilateralism, and climate financing must not add to the burden of developing economies, loans and borrowings. And we need to double the adaptation financing from the present level. वज़ीर आज़म ने कहा कि शुरका की जानिब से दी गई तजावीज़ माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए सूदमंद साबित होंगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजिकिस्तान के सदर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से कुदरती आफात में इजाफा हुआ है, जिससे निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर है। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से क्लाइमेट गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि ज़ायद कार्बन के अखराज वाले तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों के ज़िम्मेदार हैं। ताजिकिस्तान के नए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ हमारे इक़दामात गैर मुतज़लज़ल है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात को कम करने के लिए तमाम ममालिक को यकसा वसाइल फराहम किए जाएँ। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि बैंक पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ मनसूबों में मावनत फराहम कर रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुतासरा ममालिक के अज़ाले के लिए फ़ंड्स की फराहमी में शफाफियत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क पर अमल दरामद कराना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी तजावीज़ मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ में है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। मरबूत हिकमत अमली से ग्लेशियर्स के पिघलने को रोका जा सकता है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। कुतबी खित्ते से बाहर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। दुनिया में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना आलमी दर्जा हरारत और तबाहकुन सैलाब का बाइस बन रहा है। बाकू में COP29 के मौके पर ताजिकिस्तान की मेजबानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी 60 से 80% पाकिस्तान के 7000 ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। ये पानी पाकिस्तान की 90% ज़राअत और 2 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करता है। 1960 से अब तक ग्लेशियर्स के पिघलने के अमल में 23% इजाफा हुआ है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। Accelerated glacier melt has led to the formation of more than 3,000 glacial lakes in the northern part of Pakistan. Beautiful though, but at the same time posing great threat. And it is estimated that out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. We must act and act now, not only for these glaciers, but for the survival of the people and communities. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी जिंदगी है, पानी के वसाइल की हिफाजत के लिए इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। Pakistan requires enhanced support to implement glacial monitoring programs, early warning systems, adopt climate resilient agriculture practices, and invest in alternative water storage solutions. Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताजिक सदर की मेज़बानी में तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के साल के तौर पर हमें पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर अमली इक़दामात उठाना होंगे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।
ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP 29 موسمیاتی کانفرنس کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہارون الہی طور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر الہام علیوف گلے ملے اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ COP 29ویں سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں کا گروپ فوٹو بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف فیملی فوٹو کی پہلی صف میں ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی باکو آذربائیجان میں کانفرنس آف پارٹیز کے کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان متحدہ عرب امارات کے مابین موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول آمینہ اردوان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ترکیہ پاکستان کی ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وسط ایشیائی ممالک اور پاکستان میں گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ رہنماؤں نے پاکستان کے تاجکستان اور ازبکستان سے مواصلاتی رابطوں کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی نیپال کے صدر رام چندر پایوڈیل اور بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، بلند ہوتی ہوئی سطح سمندر کے خطرات اور جنگلات کے تحفظ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان برطانیہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم کی قزاقستان کے صدر قاسم جومار توقایوف سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان قزاقستان تعلقات کے فروغ اور علاقائی رابطوں میں وسعت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے خطرات پر قابو پانے کے لیے تمام اقوام کو باہمی تعلقات مضبوط بنانا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے آذربائیجان کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کے ہدف کو پورا کرنے کے قریب ہے۔ تاہم موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس منزل کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کاوشیں اپنانا ناگزیر ہیں۔ COP دنیا کے ممالک کو ماحولیاتی مسائل پر متحد کرنے کے لیے سب سے اہم عالمی فورم ہے۔ 1995 میں قائم ہونے والے اس اہم فورم کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے، کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور عالمی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ COP 29 کے افتتاحی اجلاس میں بڑی تعداد میں عالمی رہنماؤں کی شرکت اس بات کی عکاس ہے کہ دنیا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ باکو سے ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کے درمیان باکو میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاست، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر اتفاق کیا۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کی اہم ترجیحات پر عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچایا جا سکے۔
पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी शराकत दारी के जरिए इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बाकू में COP29 के मौके पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में UAE के सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, मौसमियाती इक़दामात और पायदार मुस्तक़बिल के मुश्तरका अज़्म के लिए मज़ीद मजबूत शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE के साथ मिलकर मौसमियाती एजेंडे को फ़रोग़ देंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के दरमियान भी बाकू में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की हिमायत करने और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा करने पर अंतोनियो गुतरेस का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, इन्हें और बेहतर होने की ज़रूरत है। हमसायों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। भारत की टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। अच्छी बात होती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती, उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी लंदन में इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि अच्छी खबरें आ रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है, पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुश्किलात से जल्द निकलेगा। स्मॉग के मसले पर भी उन्होंने बात की। इस मौके पर उन्होंने कहना था कि स्मॉग का मसला सालों पुराना है, रातों रात ये हल नहीं हो सकता। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की। चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैडम, पंजाब एयरलाइन शुरू कर रही है, इंशाल्लाह करनी चाहिए। एयर पंजाब करनी चाहिए। इस पे काम हो रहा है, इस पे सोचो विचार हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, इन्हें और बेहतर होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि भारत की टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती, उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो
और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियां उछालो, तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से IMF के वफ्द के मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। खजाना के वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR के चेयरमैन और वज़ारत खजाना के आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र एंटी स्मॉग एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। तफसील बता रही है वर्दा सलीम। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल बरकरार है। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली अपना रखी है। फिजाई आलूदगी बढ़ने के बायस सूबे के तमाम अजला में स्कूल और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में पहले ही तालीमी इदारे बंद हैं। फिजाई आलूदगी के बायस मोटरवेज और हाईवेज पर सफर करने वाले मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। फिजाई आलूदगी के बायस मुतासरा अजला में पिंकाई, चेस्ट इन्फेक्शन और एलर्जी के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोड के ऊपर जो है वो कम से कम गाड़ियाँ होंगी, तो कम से कम गाड़ियाँ होने का मतलब ये है कि एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर रहेगा। ये आवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस तरह इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है, तो उसको कम करने के लिए ये शॉर्ट टर्म जो है ना वो मेजर गवर्नमेंट को लेने पड़े। महकमा माहौलियात ने लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन्स के निजी दफातर के 50% अमले को घर से काम करने का हुक्म जारी किया है। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी दफातर पर फैसले का इतलाक 13 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। बढ़ती हुई स्मोक सेहत के लिए नुकसानदेह तो है ही, ताहम हमसे समाजी जिम्मेदारियों का तकाजा भी करती है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, लाहौर। उधर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहात में स्मॉग का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई आलूदगी से जहाँ इंसानी जिंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, वहीं फसलों पर इसके मनफी असरात भी मुरतब हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध का सिलसिला जारी है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। मुल्तान डिवीजन में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में 74 भट्टों, 15 सनती यूनिट्स को बंद करके मजमूई तौर पर 55 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। फसलों की बाकियात जलाने पर 7 FIR का इंदराज और 90,000 रुपए जुर्माना किया गया। धुआं छोड़ने वाली 982 कमर्शियल गाड़ियों को बंद करके 56,70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। फजाई आलूदगी के बायस जनूबी पंजाब भर में बागात, पौधे और फसलात भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे जिम्मेदारों को खासतौर पे साउथ पंजाब के इस हालात के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है और एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे आना है कि अब हमें सिंपल फसलों की तरफ नहीं रहना। अगर हम दरख्त लगाएंगे तो वो उसमें इस तरह के जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उसमें हमारी फसलों की बढ़ोतरी भी अच्छी होगी और उनकी हम अच्छी प्रोडक्शन जो है सस्टेनेबल बेसिस पे ले सकते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक काश्तकार फसलात और सब्जियों की लाइट इरीगेशन करें। लाइट इरीगेशन से टेम्परेचर बेहतर होगा और फसल की बढ़ोतरी और बेहतर पैदावार में मदद मिलेगी। फजाई आलूदगी के बायस काश्तकार सुबह और शाम के औकात में स्प्रे करने से गुरेज करें और अपनी फसलों की लाइट इरीगेशन करें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि स्मॉग हमारे लिए संगीन खतरा बन चुका है। इसके खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। तफसील फहद अजीज से। स्मोग और फिजाई आलूदगी से मुतल्लिक इजलास से खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीली का शिकार है। स्मोग और फिजाई आलूदगी से सेहत और मामूलात ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मोग की एमरजेंसी बहुत बड़ा ह्यूमन एमरजेंसी भी है और मुआशी एमरजेंसी भी है, चूँकि तकरीबन 9% GDP का हमारा इससे मुतासर हो सकता है, जो कि तकरीबन $30 अरब के करीब बनता है, जो एक खतीर रकम है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो पायदार तरक्की का मंसूबा बनाया है उसमें 5 E's के अंदर एक E इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से मुतालिक है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हम किस कदर अहमियत इस शोबे को देते हैं, चूँकि ये हमारे लिए एक संगीन चैलेंज और ख़तरा बन चुका है।
एहसन इकबाल ने कहा कि स्मोक के बुनियादी असबाब में सरहदी आलूदगी, गाड़ियों का धुआं और फसलों का जलाना शामिल हैं। इससे निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने पुलिस लाइन्स पेशावर मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले के मरकजी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कांस्टेबल है। ये तफसीलात इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। मजीद उन्होंने क्या बताया, बताएंगे अनवारुल्लाह खान अपनी इस रिपोर्ट में। IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने बताया कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मुश्तरक कार्रवाई करते हुए पेशावर की रिंग रोड जमील चौक से पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली उर्फ उमर को गिरफ्तार किया है। दौरान इंटरोगेशन इसका अंदाजा हुआ कि ये हमारा पुलिस का ही सिपाही है। 30 जनवरी 2023 को एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया था। हम लोगों ने मार्च 2023 में कामयाबी हासिल की जब हमने इसका एक अहम रुकन उस ज़माने में गिरफ्तार किया, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इसके पीछे गैंग कौन सा मुलव्वस है। अख्तर हयात खान गंडापुर ने कहा कि खारजी मोहम्मद वली ने इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस लाइन्स जमा कराने में खुदकुश हमलावर कारी साकिन अफगानिस्तान को सहूलत फराम करने का एतराफ़ किया है। को जमातुल अहरार के थ्रू 40 से 50 हज़ार रुपए महीना मिलता था, जो इसको हुंडी हवाले के जरिए वसूल करता था। मोहम्मद वली ने वीडियो बयान में अपने तमाम जराइम का एतराफ़ कर लिया है। तकरीबन 3 साल कबल 2021 में मेरी जमातुल अहरार के जुनैद नामी फेसबुक ID से रब्ता हुआ और उसने मेरी ज़िंदसाज़ी की। नतीजतन मैंने इनका साथ देने और जमातुल अहरार में शामिल होने का इरादा कर लिया। दुरानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने वाज़ेह बयान दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फितना अल खवारिज के नेटवर्क को ख़त्म करने और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पूरी तरह पुरआज़म है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। 9 नवंबर 2024 की सुबह रेलवे स्टेशन कोयटा में बम धमाके में 27 अफराद शहीद और 50 के करीब जख्मी हुए। जख्मियों और उनके लवाहिकीन ने दहशतगर्दों के इस बहीमाना इकदाम को बलोचों की नस्ल कुशी करार दिया है। मेरा नाम शेरजान बलोच है। 8:20 से 25 मिनट हुए थे शायद, तो मेरे बच्चे ने कॉल किया कि बस इधर बाबाजान धमाका हो गया है। तो इसी धमाके में हम लोग जख्मी हो गए। सिर्फ इतनी बात हुई। बहुत जोरदार धमाका था। हम लोगों के कान वगैरह वो बस उस टाइम बंद हो गए। हम लोग कुछ पता नहीं चला, हर तरफ खून ही खून था। बस सर आग दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं फिर एम्बुलेंस में मुझे बचा के लेके आए। हम लोग स्टेशन में पुलिस भी नहीं करते, कमाने वाला कोई नहीं। एक लड़का है, 2 लड़की हैं, एक घरवाली, एक हम स्टेशन में ये मजदूरी करता हूँ। पुलिस भी नहीं। उनको हमारा यही पैगाम है कि भाई आप जो ये मजलूमत है और मुसाफिरों पे आप जो अटैक कर रहे हैं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। ये तो मुसाफिर बेचारे नहते लोग हैं। मुसाफिर को तो जो है तो कोई दुश्मन भी जो है तो उस पर अटैक नहीं करता है, लेकिन किसी मुसाफिर के साथ दुश्मनी करना ये तो ना कोई हदीस में न कुरान में है। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर से रावलपिंडी जाने वाली बारातियों से भरी कोस्टर बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। 12 डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7 अफराद की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू अमल में मुश्किलात का सामना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित में बस के हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करते हुए जाँ बहक अफराद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास के मौके पर जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास के मौके पर जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म पीटर फियारा ने मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जिक्र किया जो दो तरफ़ा और कसीरुलजहती शोबों पर मुहित हैं।
دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون بڑھانے کے مواقع بالخصوص اقتصادی ترقی اور مشترکہ علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر پاکستان کے اسٹریٹجک محل وقوع اور وسطی ایشیا کے گیٹ وے کے طور پر استعداد پر بھی روشنی ڈالی۔ چیک کمپنیوں کو پاکستان میں توانائی، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونے کی وزیر اعظم نے دعوت بھی دی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور پائیدار ترقی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کوششوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی حالیہ دور میں اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جس کے لیے اجتماعی عالمی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے۔ جی، ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد مظہر عباس، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مظہر، آگاہ کیجیے گا اس اہم کانفرنس، اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف COP 29 کے موقع پر جو ہے وہ اس وقت آذربائیجان باکو میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جو ہے وہ چیک ریپبلک کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور پائیدار ترقی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان دیرینہ تعلقات کا ذکر بھی کیا ہے جو دو طرفہ تعلقات اور کثیر و جہتی شعبوں پر محیط ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون بڑھانے کے مواقع بالخصوص اقتصادی ترقی اور مشترکہ علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر بھی گفتگو کی ہے۔ اس دوران پاکستان اور جمہوریہ چیک کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو وسعت دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک محل وقوع اور وسطی ایشیا کے گیٹ وے کے طور پر استعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور چیک ریپبلک کی جو کمپنیاں ہیں ان کو پاکستان میں توانائی، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ جو گیٹ وے کی حیثیت سے پاکستان کے استعداد کافی زیادہ ہے اور چیک کمپنیز کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ محمد مظہر عباس، آپ نے ڈیٹیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کریں گے۔ تمام مراکز صحت کو بہتر بنانے کا عمل 31 دسمبر تک مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی مراکز صحت کو جدید ترین کلینکس میں تبدیل کیا جائے گا۔ دیہات میں بھی ایسے کلینکس بنائیں گے جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر ہوں گے۔ اس پروجیکٹ میں 1236 مراکز صحت کی مرمت و بحالی جاری ہے۔ ناظرین، پنجاب میں پرندوں اور جنگلی جانوروں کے غیر قانونی شکار اور کاروبار کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت 15 ملزمان کے چالان کیے گئے ہیں۔ ملزمان کے خلاف کارروائیاں جہلم اور چکوال میں کی گئیں۔ 12 ملزمان کو 2.25 لاکھ سے زیادہ جرمانہ عائد کر کے 2 بندوقیں ضبط کر لی گئیں۔ ڈی جی وائلڈ لائف کے مطابق ریسکیو کیے گئے جانوروں کی ضروری نگہداشت کے لیے جلد وائلڈ لائف پارک منتقل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری شجاعت حسین نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے تعاون سے تعمیر ہونے والی تمام نئی سڑکوں کو شہداء کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں تعمیر ہونے والی نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس ملاقات میں چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین نے آسٹریلیا کے خلاف 22 برس بعد ون ڈے سیریز جیتنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پیپر لیس ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں پہلی پیپر لیس سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو جدید اور ڈیجیٹلائزڈ ریاست بنانے کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اہم اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پیپر لیس میں ہونا ماحولیاتی تحفظ کی جانب اہم قدم اور مستحکم ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالی اقدامات کارکردگی میں بہتری اور شفافیت کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔
SIFC के तहत ग्रीन टूरिज्म मुल्क में सियाहत के फरोग देने के लिए कोशां है। इसका मकसद पाकिस्तानी सियाहत को आलमी सतह पर पुरकशिश बनाना है। ग्रीन टूरिज्म इस सिलसिले में 30 से ज्यादा हुकूमती इदारों के साथ ताउन कर रही है। ग्रीन पाकिस्तान का मकसद खेलों और इवेंट्स के जरिए मकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को उजागर करना है। ग्रीन टूरिज्म सयाहों को फोन पर बुकिंग, गाइड्स और रिहाइश की सहूलत की फराहमी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती मुस्बत इक़दामात से पाकिस्तान के सयाहती शोबे को नए उफ़क़ तक पहुंचाया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 93,871 की सतह को छुआ। ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बायस 100 इंडेक्स 423 पॉइंट्स की कमी के बाद 93,224 पर बंद हुआ। तफसील बताएंगी आयशा आफरीन। आज दौरान ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखा गया। 93,648 पॉइंट से ट्रेडिंग का आगाज हुआ और 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 93,871 की सतह तक जा पहुंचा। ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स में कुछ पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 92,000 की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने एक दफा फिर सरमायाकारी की और 100 इंडेक्स ने 93,000 की सतह को न सिर्फ दोबारा उबूर किया बल्कि दिन के अख्तिताम तक इसे बरकरार रखा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 49.2% बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट्स 22% से 15% पे आ चुके हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। रुपए की कदर में इजाफा हो चुका है। ये सारी वजूहात है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कारोबारी दिन के दौरान सीमेंट, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स और दीगर शोबों में मुसलसल बेहतरी रही। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 79 करोड़ 20 लाख शेयर से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 30 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। बाजार हिस्से में 151 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 242 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 61 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब 7,000 रुपए की कमी के बाद फी तोला सोने की कीमत 2,70,500 रुपए पर आ गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 6,000 रुपए कमी के बाद 2,31,911 रुपए हो गई है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जजेस कमेटी के अरकान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पहले दायर होने वाले आईनी मुकदमात पर मबनी रोस्टर जारी करने की हिदायत की है। जस्टिस आयशा ए मलिक 14 और 15 नवंबर को अदम दस्तयाबी के बायस बेंच में शामिल नहीं होंगी। इजलास के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस कमेटी को उसके दायरा समाअत में आने वाले आईनी मुकदमात से मुतालिक आगाह किया। रॉयल मराकश फ़ज़ाइया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद गादी ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों और बुलंद अज़्म का एहतराफ़ किया। मशरक़ वस्ता में सियोनी फौज की जारियत जारी है। गुज़श्ता 48 घंटे में गजा पर इसराइली फोर्सेज के हमलों में मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक अलमुआसी पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा शहर पर हमले में 5 जबकि बैद हनून पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल पर टैंकों की चढ़ाई और गोलाबारी से तिब्बी अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी जंगजुओं के साथ लड़ाई के दौरान 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,665 हो चुकी है। लबनान के शिमाल में वाक़ कस्बे एन याकूब पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 14 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जारी फोर्सेस ने बैरूत के नवाही इलाके पर भी ताज़ा फ़ज़ाई हमला किया है जिसमें शहादतों की इत्तला है। हमले से पहले इसराइली फोर्सेस ने इलाका खाली करने का इंतबाह जारी किया था। लबनान की मुसल्लह ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। हमले के बाद इलाके में सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए मोदी हुकूमत के हथकंडों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने आज सुबह कुपवाड़ा और बांडीपुरा अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की। फौजियों ने ज़िला किश्तवाड़ में भी तलाशी के ऑपरेशन जारी रखा। डोडा कस्बे में भी एक नौजवान समाजी कारकुन को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी सियासी कैदियों की तवील नज़रबंदी और भारतीय हुकाम की तरफ से जेलों में उनके साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी मुतालबात को दबाने के लिए काले कवानीन के मुनज़्ज़म इस्तेमाल की मज़म्मत की। उन्होंने कश्मीरी नज़रबंदों को दरपेश गैर इंसानी सूरत हाल को उजागर किया, जिसमें जेलों में गुंजाइश से ज़रा कैदियों की मौजूदगी, कैद तन्हाई, तिब्बी सहूलियात से महरूमी और अदालती कार्रवाई से बगैर गैर मुय्यना मुद्दत की नज़रबंदी शामिल है। दूसरी जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दलित ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुंतखब हुकूमत की मौजूदगी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल खुसूसी इख्तियारात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और उनके किरदार पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से इजलास बुलाने के फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ इसी तरह का इजलास बुलाते हैं, जिससे इंतजामिया के अंदर गैर ज़रूरी रस्साकशी और मायूसी पैदा होती है। पाकिस्तान टेलीविजन की मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अम्बरीन जान ने PTV लाहौर मरकज़ का दौरा किया। GMPTV लाहौर डॉक्टर कैसर शरीफ ने उन्हें न्यूज़ रूम, न्यूज़ और करंट अफेयर्स के HT स्टूडियोज़, MCR, डे केयर सेंटर और दीगर शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी। MD ने TV की बेहतरी के लिए कारकुनों की तजावीज़ सुनी। MD अम्बरीन जान ने लाहौर मरकज़ के तमाम शोबों के सरबराहों के साथ मुलाकात की। MD ने कहा कि इंतज़ामिया मेरिट के कल्चर को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। इंतज़ामिया कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए PTV स्क्रीन की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने, जबकि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान के नुमान अली को अक्टूबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया है। नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौमी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने सीरीज के 2 मैचेस में 13.85 की औसत से 20 विकेटें हासिल की थी। अवार्ड के लिए नुमान अली के अलावा जनूबी अफ्रीका के कागिसो रबादा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर को नामजद किया गया था। खवातीन में ये एजाज न्यूजीलैंड की इमिलिया कर के नाम रहा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद सीखने का अमल शुरू हुआ है। क्रिकेटर्स T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरज़्म हैं। T20 सीरीज से कबल ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमने मुत्तहिद होकर खेला और ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप समेत बड़े टाइटल्स जीतने हैं, किसी भी मुल्क में खेलकर तारीख रकम करने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि कोशिश करता हूं तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के मशवरे से लेकर मैदान में उतरूं। श्रीलंका ए को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 4 रोजा मैच में पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 66 रन दरकार हैं। रावलपिंडी में जारी पहले मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान शाहीन्स की टीम पहली इनिंग्स में 258 रन बनाकर आउट हो गई। अली जरियाब, हुसैन तलत और रुहेल नज़ीर ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। श्रीलंकन टीम के विश्वा फर्नांडो ने 4 विकेटें हासिल की। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर श्रीलंका ए ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होने वाले इवेंट में निसार अली कौमी ब्लाइंड टीम की क़यादत करेंगे, जबकि बदर मुनीर नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में पहला मैच 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में सीनियर्स के साथ साथ नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन हुआ इख्तिताम पजीर। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।